Good morning everyone and welcome to the class. We are doing this chapter, the revision of the chapter, the philosophy of the constitution, and under this chapter we are we are discussing the various political philosophy of our constitution. What are the different concepts and ideologies which are the philosophy which constitute the philosophy of our constitution. And in this regard we have seen that our constitution is not based on any single ideology or any single philosophy. Actually it's a mix of different ideologies, and in this regard we have seen that our stress was on individual freedom, which is based on the ideology of individualism and liberalism. But according to that ideology, we have adopted the fundamental rights in which this individual freedom is given to the people. But what we find is that we are not 100% giving importance to only individualism or liberalism. Liberalism is important, individualism is important, but what is more important, to bring social justice in society, to make the society an egalitarian society. And for that purpose, what is done by our constitution makers, that the group which is the victim of entrenched inequality in our society, that group was given some positive discrimination, that group was given some special arrangement, and this is in the form of रिजर्वेशन. उनके लिए सीट्स रिजर्व किए गए. कहाँ पर सीट्स रिजर्व किए गए? लोकसभा में. देन उनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में हुआ और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हुआ. तो इट वाज डन टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड social justice. We cannot think of making our society equal only by providing freedom. Freedom is important, but in a society where caste inequality is deep rooted from the very long period in the past, this caste inequality was practiced. तो इस तरह की सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए सिर्फ फ्रीडम देना इज़ नॉट सफिशिएंट. अगर हमको सही में इक्वालिटी लाना है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसके लिए हमें काम करना होगा. उसको कुछ स्पेशल अरेंजमेंट उसके लिए करनी होगी, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. ठीक है, तो ये हमने अडॉप्ट किया. इसके बाद जो थर्ड फिलोसफी जिसको हम लोग वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन रिगार्डिंग दैट third philosophy of our constitution, that is respect for diversity and minority rights. Respect ठीक है, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, वी हैव अ डाइवर्स कल्चर, है ना. डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग रहते हैं. तो डाइवर्सिटी एज वी स्टार्टेड अबाउट दिस in the previous class, this discussion was started. Diversity is a positive thing. It's not something which is negative, which needs to be discouraged. Actually, our constitution makers were their thinking was positive towards this diversity. कि अगर diversity है हमारी कंट्री में तो उसको क्रश नहीं करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है. और जो हमारे यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ से हमारा एफिलिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है. जिस भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी या रिलीजियस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं, उससे हमारा एफिलिएशन है. एंड इट्स नॉट ओनली इन आवर कंट्री, in European countries also we find that there is a very high degree of affiliation with the
लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, जो भी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज बोलने वाले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उनको अपने लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। वॉट एवर वी नो, यूरोप में जो नेशनलिज्म आया और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है इन द 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, जहाँ जितने सारे यूरोप में रेवोल्यूशंस होते हैं, नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, उन सब का जो बेसिस है वो लैंग्वेज ही है। और जितने भी यूरोप में कंट्रीज बने हुए, दे ऑल आर फॉर्म्ड मोस्टली on the basis of language only, language and culture, but culture में भी language is the sole criteria, we can say it. जर्मनी जो कि एक बिखरा हुआ जर्मन बोलने वाले लोगों का रीजन था, उसको वो एक जर्मनी बना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लाइकवाइज इटली भी जो बना वो दैट वाज फॉर्म्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में भी ये चीज़ें हैं, और हमारे यहाँ भी हमारा भी एफिलिएशन जो है वो कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ द रीज़न दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी मच अवेयर कि यस डाइवर्सिटी इज़ देयर एंड दे वर इन support of promoting this diversity, but at the same time they cannot adopt such a constitution in which there is no special arrangement for communities, क्योंकि कम्युनिटीज़ से हमारा एफिलिएशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बन सकता था जिसमें कि कम्युनिटीज़ का जिक्र नहीं हो। कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब भी डाइवर्सिटी होती है तो उसके साथ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की प्रॉब्लम आती है। तो जो माइनॉरिटी होता है, दैट माइनॉरिटी नीड्स अ काइंड ऑफ सेफ गार्ड, है ना, उसको सेफ गार्ड चाहिए। अगर उसको हम सेफ गार्ड नहीं करेंगे तो देयर विल बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। तो इसी बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कम्युनिटी राइट्स को भी इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि वी हैव स्टडीड अंडर द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। जब हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि हमारे कुछ कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, एंड दीज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर नॉट फॉर ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू minority communities. Minority on what basis? Minority, the linguistic minority and the religious minority. ठीक है, तो जो linguistic और religious minorities हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये अरेंजमेंट किया गया कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, and the state will not discriminate, or the state will not say that it will not give any kind of financial assistance to these religious educational bodies because they are based on religion and the country is secular. No, the government cannot say this. अगर रिलीजियस बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए फाइनेंशियल एड देने के लिए कंपल्सरी है ये गवर्नमेंट को कि वो देगी। वो इस बेसिस पे कि आप रिलीजन के बेसिस पे आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो आपको हम नहीं देंगे, बिकॉज अगर हमारा कंट्री सेक्युलर होता है तो क्या उसमें ज़रूरत होती है कि रिलीजन, सब रिलीजन को हमें एक समान देखना है, रिलीजियस कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, तो उस बेसिस पे आप मना कर सकते हैं कि नहीं, रिलीजन के बेसिस पे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना हुआ है तो इसको गवर्नमेंट कैसे एड देगी। लेकिन ये प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया कि दो द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, स्टिल द गवर्नमेंट हैज़ it is obligation, it is obligatory on the part of the government to give financial aid to these educational institutes। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिटी बेस्ड जो राइट है वो इसी से निकलता है, इसी फिलॉसफी से निकलता है कि डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करना है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी राइट्स को एंश्योर करना है। ठीक है, और इसके बाद जो एक हमारा इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सेक्युलरिज्म। अब ये सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ?
इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना होगा, बिकॉज जो सेक्युलरिज्म हमारा चैप्टर जो कि सेकंड पेपर में है, सेकंड बुक में है, दैट चैप्टर इज कम्प्लीटली डिलीटेड, है ना। अब वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना इस सेशन में, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो कि आप नहीं पढ़ पाए। तो इस चैप्टर के अंदर उसको एटलीस्ट जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर जाननी, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट कही जाएगी। तो इसमें जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अरोज, इट स्टार्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, सेक्युलरिज्म जो जिस टर्म को हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली इट ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों और कैसे और कब, ये एक इसको समझने की जरूरत है। जो मीडिएवल पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री का, मीडिएवल पीरियड को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। वाई दिस मीडिएवल पीरियड इज नोन एज द डार्क एज, बिकॉज इस मीडिएवल पीरियड में क्या हो रहा था कि किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं था, अंधकार था, ज्ञान का जो प्रकाश था वो नहीं था। ठीक है, और यही वो मीडिएवल पीरियड है जिसमें कि पोप जो थे, रोमन पोप्स, दे बिकम वेरी मच पावरफुल। और ये जो रोमन पोप जो पावरफुल बने और रिलीजियन का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया था मीडिएवल पीरियड में कि रिलीजियन का जो इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से स्टेट पर था। स्टेट और रिलीजन के बीच का जो डिमार्केशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। जो स्टेट था वो रिलीजन के रूल्स के अकॉर्डिंगली चल रहा था इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में यही हो रहा था कि रिलीजन के रूल्स को ही फॉलो किया जा रहा था स्टेट में। तो स्टेट और रिलीजन मिलकर एक हो गए थे, और जब स्टेट के साथ रिलीजन मिल जाएगा, स्टेट तो एक ऐसे ही पावरफुल होता है ना, बहुत सारे काम करने होते हैं, स्टेट को तो पावर देना ही है। अब स्टेट के साथ अगर रिलीजन भी मिल जा रहा है तो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट कैन बी द पावर ऑफ द स्टेट इफ रिलीजन इज विद द स्टेट। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पावर है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब उसके पीछे हमको रिलीजियस सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो स्टेट थे वो बहुत पावरफुल हो गए, और रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच का जो भेद, जो कहेंगे हम डिमार्केशन था, सेपरेशन था, दैट वाज कम्प्लीटली डिलीटेड। कोई सेपरेशन नहीं रह गया। अब क्या होता है, अब आगे अगर हम देखें तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो रिलीजन और स्टेट आपस में मिल जाते हैं, इसके कारण जो सबसे बुरा इम्पैक्ट होता है वो इंडिविजुअल पर होता है। जो इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से कर्टेल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रिलीजन के फोर्स के साथ स्टेट अपना काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा जो कर्टेल हुआ वो इंडिविजुअल फ्रीडम ही कर्टेल हुआ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि किसी भी तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट इस पीरियड में नहीं हो पाया, और इसीलिए इसको हम डार्क एज कहते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे बहुत स्लोली क्या होता है कि रेनेसां, जिसको हम कहते हैं, रेनेसां आता है। रेनेसां क्या है, फिर से रीबर्थ, वी कैन से इट रीबर्थ। रेनेसां को हम रीबर्थ भी कह सकते हैं कि जो एक तरह से डेड हो चुका था, जिंदगी बिल्कुल डार्क हो चुकी थी, सोया हुआ जिंदगी था, वो फिर से जाग उठी। क्यों जाग उठी? क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेंशंस होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, नॉट ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर में, फिलॉसफी में, हर फील्ड में बहुत सारे न्यू क्रिएटिविटी जो होती है वो लोगों की बढ़ जाती है, और इसी को हम रेनेसां के नाम से जानते हैं। अगर एकदम बिल्कुल सिंपल सा अगर हम समझना चाहें तो रेनेसां यही है। और ये जो रेनेसां आया, इसी के साथ यूरोप में मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग होती है, और इसी रेनेसां के साथ सारी चीज़ें बदलनी शुरू होती है कि ये समझ में आता है कि जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या क्या खामियां हैं, व्हाट आर द लूप होल्स, है ना। सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आने लगती हैं कि इन चीज़ों में क्या कमियां हैं, और एक नया विचार, एक नया
आइडियोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज जो हैं वो सामने आने लगते हैं और लोगों के विचार बदलने लगते हैं। और इसी में एक जो चीज़ आती है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब ये हुआ मॉडर्न पीरियड के साथ ही सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें ये कहना था कि देयर शुड बी कंप्लीट demarcation, complete separation between state and religion. The state has nothing to do with the religion has nothing to do with the state, because जो भी medieval period में हुआ अब उसको वो आगे continue नहीं करना था. That is why there was a complete boundary line was drawn between state and politics and state and this religion. एंड दिस इज नोन एज सेक्युलरिज्म. इसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं कि वेस्टर्न, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, है ना. ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि एकदम कंप्लीट डिमार्केशन होना चाहिए. अब हम आगे क्या देखते हैं कि हमने भी सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को ही अडॉप्ट किया अपनी कंट्री में, लेकिन हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से इसलिए डिफरेंट हो जाता है कि हमारे यहाँ कंप्लीट डिमार्केशन नहीं है. वी आर नॉट हैविंग द कंप्लीट डिमार्केशन. वी हैव one way demarcation. The religion cannot interfere in the matters of the state, but the state can interfere in the matters of the religion. But on what basis the state can interfere in the matters of the religion? Only for positive purpose. It's not कि किसी भी तरीके से state interfere कर सकता है, कुछ भी कर सकता है religion के matter में. It's not like that. Only for the positive purpose. Suppose in any of the religion, some practices are there which are exploitative against a particular section of the society. तो उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए द स्टेट कैन इंटरफेयर. जैसे हमारी कंट्री में हम वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि हमारा वो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस था, है ना. एंड दिस अनटचेबिलिटी वाज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म. हिंदू धर्म जो है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था दिस अनटचेबिलिटी, है ना. तो हमारे यहाँ जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उसमें हमने आर्टिकल 17 लगा करके इस अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया. नाउ इट कैन बी सेड टू बी अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस. यस, इट्स एन इंटरफेरेंस इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. स्टेट ने रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर किया, ठीक है. स्टेट ने रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर किया. इट कैन गो अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, है ना. वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कहता है कि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द religion, but in our country we are seeing that the state is interfering in the matters of religion because it has prohibited this untouchability. ऐसे बहुत सारे examples, I am just telling you one example, है ना. तो यहाँ पर जो स्टेट का इंटरफेरेंस हुआ उसके पीछे what was the reason behind that? The reason was that because of this untouchability, what was happening, that a particular section of the society was deprived of all the facilities of life. Not only facilities, they were not even provided the basic needs of their life. They were not allowed to enter the public places. तो ये कंडीशन थी ना. यहाँ पर हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो अनटचेबिलिटी के कारण एक ग्रुप जो है वो पूरी तरह से पिछड़ गया, पीछे रह गया. उसको हम दलित कहते हैं. दलित, यू नो द मीनिंग ऑफ दलित. दलित का मतलब डाउन ट्रोडन, जिसको कुचल दिया गया है. तो ये सिस्टम को हटाना किसकी जिम्मेदारी है? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. अगर स्टेट ही काम नहीं करेगी तो फिर तो वो कंटिन्यू रह जाता. तो ये हमारे यहाँ इसको नहीं माना गया. द स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन फॉर पॉजिटिव पर्पस. लाइक अभी भी ट्रिपल तलाक के लिए जो स्टेट का इंटरवेंशन हुआ, दैट इज ऑल्सो इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है. तो इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. एंड नाउ द नेक्स्ट वन is right of religious groups.
जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि रिलीजियस ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी सी दैट दीज रिलीजियस ग्रुप्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड दे आर गिवन सम राइट्स आल्सो. So our constitution gave us right to all the religious communities, like they can this right to establish and maintain their educational institutes, है ना. ये फिर से इसमें आएगा, सेकुलरिज्म में भी ये चीज़ें फिर से आएंगी. एंड मोर ओवर वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना. वी आर गिवन दिस राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हम किसी भी रिलीजन को अपने हिसाब से मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रोपोगेंडा भी कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारे जो सेकुलरिज्म है इसमें दो चीज़ें जो रखी गई हैं वो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म. और ये इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. So in this way we can see that our constitution makers has made a kind of balance. हर कुछ को बैलेंस करके चला गया. इंडिविजुअल फ्रीडम भी इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण हमें इतने सारे राइट्स मिले. सोशल जस्टिस को भी लेकर चला गया जिसके कारण हमने दिस रिजर्वेशन की पॉलिसी जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को स्टार्ट किया. और हमने सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को भी अपने हिसाब से अडॉप्ट किया. ये नहीं कि हमने वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, बल्कि हमने इस बात को समझा कि हम वी कैन नॉट फॉलो द वेस्टर्न सेकुलरिज्म बिकॉज वहाँ की जो सर्कमस्टांसेस हैं और यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस हैं दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट. तो ये इस तरह से हमने एक बैलेंस बना के चला कि जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म और सोशलिज्म के बीच का रास्ता है, जहाँ पर कि सेकुलरिज्म तो है बट ये अपना सेकुलरिज्म है, अपने नीड के अकॉर्डिंगली हमने सेकुलरिज्म को इवॉल्व किया है. तो ये चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस किया. अब एक और हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी है एंड दैट इज़ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. So you all know the meaning of universal franchise. We have did this when election and representation सब हमने पढ़ा हुआ है. ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है. और इसमें एक चीज़ जो ये समझना है कि आखिर इसकी अगर बैकग्राउंड हम देखें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमने अडॉप्ट किया उसके पीछे क्या रीज़न था, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या बैकग्राउंड था. Like in our country we fought against the British rule, है ना, वो which is known as the national movement of the country. So this struggle for freedom was not only for the freedom from that British rule, that colonial rule. It's not कि हमें सिर्फ colonial rule से आज़ाद होना था. हमारा एम था डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना. जो हम लड़ाई लड़ रहे थे जिसको हम नेशनल मूवमेंट का नाम देते हैं, एक्चुअली दैट लड़ाई वाज, दैट स्ट्रगल वाज नॉट ओनली टू रिमूव द ब्रिटिश रूल बट टू एस्टैब्लिश democratic rule. And in this movement, in this struggle, the people of the country participated very actively, है ना. And this is when we got independence and this constituent assembly was formed. Actually this constituent assembly was formed before गेटिंग इंडिपेंडेंट, उसके पहले ये फॉर्म हो गया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम जब चला उसमें हम क्या देखते हैं कि जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम कहेंगे, जिसको कि एक्सेप्ट किया गया इंडिया में, उस एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में कोई भी, जिसको कहें कि किसी भी तरह का कोई वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, controversy, no conflict was there, no conflict was there regarding this universal adult franchise. इस बात के लिए सारे जो members थे they were very much knowing and they have very much accepted
कि हमें तो देना ही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि जो भी इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज 21 ईयर्स ऑफ एज, जो भी 21 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा के लोग थे, 21 या 21 से अबव, उनको राइट टू वोट दे दिया गया और बाद में अमेंडमेंट करके इस 21 को 18 कर दिया गया। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, है ना। ये सुनने में हमें लगता है कि हाँ मिल गया तो कोई बात नहीं, बट if we see कि in most of the western countries some section of society like the poor, the women, they have to fight a long battle. They have to fight a long battle in order to in order to get this right to vote. चाहे वो फ्रांस की कहानी हो, चाहे अमेरिका की कहानी हो, चाहे ब्रिटेन की कहानी हो, हर कंट्री में खास करके अगर वुमेन को पुअर सेक्शन भी लड़ा, पुअर सेक्शन ने भी लड़ाई की, स्ट्रगल किया, तब जा कर के पुअर को तो पहले मिल गया, मतलब मेल मेंबर्स को मिल गया, बट फीमेल मेंबर्स को ये हम 20th सेंचुरी में मिला है। 1920 में यहाँ मिला है यूके में, 1946 में फ्रांस में। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमारी कंट्री में हमने सबको एक साथ दे दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सबको एक साथ दे दिया। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि नहीं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको नहीं मिलेगा, जो पुअर हैं उनको नहीं मिलेगा, जो वुमेन है उनको नहीं मिलेगा, बल्कि सबको ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो दे दी गई। तो इसके पीछे रीज़न यही था, इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर गिवन दिस राइट कि हमें कुछ मिल गया, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। That is the thing which I discussed just now. The fight against the British rule was not only the fight against the British rule. Actually, it was a fight for democracy, and democracy is meaningless in the absence of universal adult franchise. And that is the reason this universal adult franchise was made a part of the an important part of the constitution. हालांकि what we find that in the western countries it was criticized, नेहरू was criticized कि नेहरू ने एक गैम्बलिंग की है, ऐसा कहा गया कि इतने सारे इलिटरेट लोगों को उन्होंने राइट टू वोट दे करके एक तरह का गैम्बल खेला है, और जिसका क्या नतीजा होगा वो तो मतलब वक्त बताएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहने को मिली, लेकिन हमने अपने आप को प्रूव कर दिया। the people of India have proved themselves, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है, और इसका क्या बेसिस है वो हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी है दैट इज फेडरलिज्म। We have a federalism, we have adopted federalism, and there are some reason behind this federalism. First of all, this federalism chapter is deleted from your syllabus, है ना। एक पूरा चैप्टर काफ़ी कुछ उसमें है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आई मस्ट से कि मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमने ही उस चैप्टर को पढ़ा है ना। जब तक सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था उसके पहले ही वो सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीटेड थे। तो फेडरलिज्म हमने पढ़ा है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। फेडरलिज्म जो है वो है डिवीज़न ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। So first of all, there will not be a single level of the government. In a federalism, there will be different levels of the government, and among these different levels of the government, there will be division of power, and this division of power will be done by the constitution. That is the most important thing. The constitution is the source of all powers. Neither the state government nor the central government is powerful. Which is powerful? The constitution is powerful. The constitution has made arrangements for this division of power between center and state. This is federalism. And now we come to this that
in our country we have a federal form of government, and under this federal form of government what is done that the division of power is done in such a manner that the center is more powerful than the state. तो हमने फेडरलिज्म को भी जो लाया, अडॉप्ट किया, इट्स नॉट समथिंग विच इज अडॉप्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज. हमने ब्लाइंडली अडॉप्ट नहीं किया. अगर यूएस के फेडरलिज्म को देखते हैं तो इन द फेडरलिज्म, यूएस फेडरलिज्म, द सेंटर इज लेस पावरफुल देन द स्टेट्स आर मोर पावरफुल. तो हमने यूएस को फॉलो नहीं किया, हमने अपना ही फेडरलिज्म लाया जिसमें कि यूनियन को पावरफुल बनाया गया. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फेडरलिज्म. पहले तो फेडरलिज्म को क्यों अडॉप्ट किया, देन फेडरलिज्म के एक नए वेरिएशन को हमने दिया, एक नए रूप को हमने अडॉप्ट किया जो कि हमारा अपना है, अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टांसेस है. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास.